Hello students, how are you all? Hope you are all fine and healthy. Well, let's start today's session, and we will start today with the First World War and the Russian Revolution. That is your chapter 2 in standard 9. When we are talking about the history of chapter 9, history section of chapter 9 to be more specific, the whole history section covers either the First World War or the Second World War era or the independence era of India. So these both make the whole history section of ninth standard. Now, when we are talking about the First World War, how did the First World War start? What made the First World War to happen? Now, that is a question, that is a big question, because in the First World War so much expense incurred, so many people died, and parallelly Russian Revolution was also taking place at the same time period. When First World War was taking place, at the same time in Russia, Russian Revolution was taking place. So the world was about to change. The world's mentality, the thought process of various big heads were about to change. So that change, how was it made? What was the process of it? So this chapter covers up many points at that time period So let's start. Western Europe countries and the colonization in Asia and Africa began. Now, let me explain to you first what the colonization is. It is a very easy term. Before we all developed the technology or the whole tourism factor began, people used to visit other countries either for trade purposes or for exploration purposes, right? So trade purposes, what did they do? Where did they live? So they used to live by making a colony there. They used to make a colony there. They will live there for 10 or 15 days, whatever time they will do the trade. They will earn the money and they will leave that place. So that was a process. Now, establishing colonies by Europeans method, if you see, so they established colonies. People visited those colonies, the families began there, and those were the colonies जो सिर्फ 10-15 दिन नहीं बल्कि काफी और समय तक आगे बढ़ते चले गए. काफी और समय तक से मेरा मतलब क्या है? अगर हम इंडिया के केस में देखें तो ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे 200 साल तक रुक गए, शायद उससे भी ज्यादा. तो ये जो फैक्टर है कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने का, वो उस टाइम पे एज अ ट्रेड मेथड देखा जाता था. बट अब जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना उस टाइम पे ट्रिक थी एक यूरोपियन कंट्रीज की, कि वो उस कंट्री में ट्रेड के बहाने जाते थे, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करते थे. पहले वहाँ के किंग से परमिशन लेते थे और उसके बाद धीरे धीरे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर देते थे. अब यही हुआ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और एशिया और अफ्रीका की कॉलोनाइजेशन की जो बात कही गई है यहाँ पे उसके मैटर में, कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बहुत बुरी तरह से चाहते थे कि उनका भी जो राज्य है, उनका भी जो कंट्री है वो एक्सपैंड हो, and they wanted to expand the empire in Asia and Africa. As you all know, Asia in its own term is very much rich, was very much rich, is still very much rich. So there was a greed that जितना ज़्यादा हो सके हम वहाँ से फ़ायदा उठा लें. सो दैट प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम देयर. पहले तो एशियन कंट्रीज से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ. कॉलोनाइजेशन एशियन कंट्रीज में कैसे स्टार्ट हुआ? तो इंडिया में ऑलरेडी वो अपना ग्रिप जो है वो बना चुके थे. इंग्लैंड ने अपना एम्पायर श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया तक एक्सपैंड कर लिया था. इंग्लैंड चाइना में भी एंटर हुआ, बट उसका जो ओपियम ट्रेड चल रहा था इंग्लैंड और चाइना के बीच में, तो उसमें उन दोनों के वॉर हो गए. 1839 से लेके 1842 तक उनके बीच में वॉर हुए, जिन्हें ओपियम वॉर्स कहा जाता है. इन वॉर्स को चाइना हार गया, और जैसे कि चाइना हार गया, उसने अपने 5 पोर्ट्स इंग्लैंड को हार दिए, मतलब दे दिए, और वहाँ पे इंग्लैंड फ्री था ट्रेड कैरी आउट करने के लिए. और इसी तरह से इंग्लैंड ने अपना जो एक्सपेंशन प्रोसेस है वहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया. चाइना की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए, चाइना की वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी
काफ़ी और कंट्रीज जैसे कि जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, इन लोगों ने भी वहाँ पे ट्रेड और पॉलिटिकल राइट्स एक्वायर कर लिए। सो एशिया जो एक हब हुआ करता था ट्रेड का, मटेरियल्स का, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता गया। जो डेजर्ट रीजन है वेस्ट में, उसमें इनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज थे, तो यूरोपियंस को पता था ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है, इसीलिए यूरोपियंस ने वहाँ पे कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका जैसी कंट्रीज ने वहाँ पे ऑयल कंपनीज बनाई। कहाँ पे? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, और उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले कि उनका खुद का इंटरेस्ट कहीं खो ना जाए। अब अरब्स जो थे वहाँ के, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तो आप समझ सकते हो कि क्यों आज अभी भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे आज तक वी डू नॉट फाइंड द रूल सेक्शन देयर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि अफ्रीका में कैसे ये कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, कॉलोनलिज्म एस्टैब्लिश हुआ। तो डच ने पहली बार, द डच पीपल पहली बार दे एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी इन द 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद इंग्लैंड वहाँ पहुँचा, उसके बाद फ्रांस वहाँ पहुँचा, और धीरे धीरे करके नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड इवन सम प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट अफ्रीका, तो ऐसे करके पूरे अफ्रीका को बहुत सारे कंट्रीज ने, ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे कंट्रीज ने वहाँ पे अपने ट्रेड सेंटर्स या फिर कह लो कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर ली और धीरे धीरे वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। जैसा इंडिया में हुआ सेम वे में अफ्रीका में हुआ। ऑफ कोर्स वहाँ पे और भी चीज़ें, जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी हद जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूरोपियन नेशन जो है वो कॉलोनाइजेशन बढ़ाते जा रहे थे एशियन और अफ्रीकन टेरिटरी में, और दूसरी तरफ जर्मनी, जो कि अभी पिक्चर में नहीं आया था, जो कि एक छोटा कंट्री माना जाता था, उन्होंने अपना पॉलिटिकल यूनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। मतलब जर्मनी जो यहाँ वहाँ बटा हुआ है, अलग अलग रीजन्स हैं, उसे इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर जर्मनी जैसे पूरा कंट्री बना दिया जाए। तो वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जर्मनी और इटली में चलने लगा। जो यूनिफाइड जर्मनी था उसने सोचा कि हम किसी से कम नहीं हैं, और इसीलिए वो कंपटीशन में कूद पड़ा। किसके साथ? तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी अपना ट्रेड एस्टैब्लिश कर चुके हैं एशिया और अफ्रीका में, वहाँ पे जर्मनी ने अपना कंपटीशन वो लेके आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, ये सब जर्मनी ने भी स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे जो सिर्फ एक यूरोपियन कंट्रीज की मोनोपोली हुआ करती थी, वो जर्मनी ने एंटर करके तोड़ना स्टार्ट कर दिया। बट क्या हुआ, जो बाकी के कंट्रीज थे जिनके ऊपर ये लोग रूल कर रहे थे, जिनको ये लोग कॉलोनीज बना के हथिया रहे थे, उनका डेवलपमेंट जो है वो बुरी तरह से रुक गया। और इसी वजह से जो घबराहट थी, जो डर था, जो रिवेंज लेने का एक मकसद था, उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या थे? तो आपको यहाँ पे 6 फैक्टर्स दिए गए हैं, और ये फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं समझना, क्योंकि जब जर्मनी ने यूरोपियंस का जो एक बड़ा बना बनाया एक पूरा मोनोपोली वाला मार्केट था उसे तोड़ा, तो यूरोपियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने घेरना चाहा, रोकना चाहा जर्मनी को। बट जर्मनी वो अपने ही एक अलग ही मोड़ पे चल रहा था, बिकॉज इट हैज रिसेंटली ओनली अडॉप्टेड दैट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, और उसे पक्का यकीन था कि इट इज़ वे मोर पावरफुल देन ऑल दोज यूरोपियन कंट्रीज। तो इसी चक्कर में 1 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ये आपको डेट दिया हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ तो बता दूँ। जर्मनी ने पहले 1871 में फ्रांस को हरा दिया था सिडान वॉर में, और इसकी वजह से फ्रांस को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। ट्रीटी एक एग्रीमेंट होता है, जब आप किसी के साथ दोस्ती करते हो या फिर किसी के साथ लड़ाई करते हो, उस टाइम पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मानने पड़ते हैं सामने वाले के, या फिर दोनों के आपसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उन्हें मानने पड़ते हैं। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो एक पेपर पे या फिर एक फाइल में लिखे हुए होते हैं, उन्हें साइन करना पड़ता है दोनों की सहमति के साथ।
तो ये जो ट्रीटी है वो साइन करनी पड़ी थी फ्रांस को, और इस ट्रीटी के अनुसार फ्रांस को जो है ये वॉर का, ये जो उसने लड़ाई स्टार्ट की थी उसका वॉर फाइन देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसके दो प्रोविंस मतलब उसके दो रीजन्स हैंड ओवर कर देने पड़ेंगे। किसको? तो जर्मनी को। लॉरेंस और एप्सिस उन रीजन्स का नाम था। फ्रांस को अपनी ये बेइज्जती, ये ह्यूमिलिएशन जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फ्रैंकफर्ट कहा जा सकता है कि 1871 में जो साइन की गई फ्रैंकफर्ट ट्रीटी है वो ही एक कॉज बन गई, एक रीजन बन गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करने का। बाकी के फैक्टर्स हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।